Okay, so good morning and welcome back. And well, as usual, admit always happen for 2 seconds or maybe even minutes also. Okay, some more joining. Shivam, Shaurya, Sama. Good morning, Akshay, Karthik, and all those who have just joined us. Just some messages. Good morning to all, of course. कल जो है या yesterday जो है हम लोग एक वो कर रहे थे difference between EMF and potential difference. ठीक है? So maybe we will begin at that point only, and that is EMF मतलब सेल का एक्चुअल ताकत है. यानी अब जब हम दुकान में खरीदने जाते हैं, when we go to the shop to let's say buy some cell and all, so what we buy is EMF, because potential difference cannot be bought, because potential difference of that cell only will depend on which kind of circuit have you put in. Isn't it? In fact, in this context, just to differentiate between EMF, potential difference and all, let me introduce another theorem. Though our heading is still utility of potentiometer, or rather meter bridge and potentiometer, which mostly uses the basic underlying principle of Wheatstone bridge, and to be more precise, Kirchhoff's law. Even Wheatstone bridge is also based on what? Kirchhoff's law. Now, let me introduce 2-3 things at a time. Number one, let's say I want to know the variation of EMF versus potential difference. Now, how will EMF vary with, let's say, current? Sorry, potential difference vary with, suppose, current. Okay? So, what will be the variation of potential difference vis-a-vis current? Okay? So that you can probably start investigating. Shreya has just joined us. Is that, let us say, in a given circuit, so I'm talking about this circuit. In a given circuit, suppose I have a variable resistance. So you have E, you have R, and a variable resistance. The variable resistance का symbol यही है. Resistance का तो देखो symbol ये है. This is simple resistance. This is a variable resistance. Means तो उसको vary करा सकते. So you can vary the resistance of this. ठीक है ना? There are observations and observations. कि आज बोर्ड के बीच में कुछ गैप सा लग रहा है. So now people have started making fun of it. चलो कोई बात नहीं. So like now I want to study the potential difference variation with let's say resistance. ठीक है ना? तो कैसे variation होगा? That's the query. Actually कहना ये set करके set
चलो जो भी है, काम चलने चाहिए। दिस आल्सो क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम ध्रुव एंड दैट इज मीटर ब्रिज। कल जो किया था वही है क्या? बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड एज अ मीटर ब्रिज। जो हमने कल किया था ना, अननोन रेजिस्टेंस निकालना, वो जो डिवाइस था, इट इज नथिंग बट पोटेंशियोमीटर ओनली, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। So that is why it is called as meter bridge, like Wheatstone bridge। तो मीटर नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि जनरली हम लोग वायर 1 मीटर या उसी के मल्टीपल यूज करते हैं, nothing beyond that। वो भी कोई कंपल्शन नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो देखना अपडेट देंगे ही, वो देखना 80 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर ऐसा नहीं। सो लाइक देयर इज नो कंपल्शन एज सच, बट यस इन प्रैक्टिस, यानी जो भी लैब वगैरह में मिलता है, उसमें वो जो मैंने वायर बोला था ना, कैपिटल एल और स्मॉल एल वगैरह, वो जो है 1 मीटर, इसलिए उसका नाम दे दिया गया मीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्रिज, लाइक कंबाइन करके मीटर ब्रिज। द सेकंड वन व्हिच इज टू फाइंड आउट ईएमएफ एंड कंपेयर, जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, वो अभी मैंने डिवाइस बताया नहीं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बट अभी पहले इसके निपटारा हो जाए। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अगर ड्रॉ करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR। देखो जब I 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, और जैसे जैसे I बढ़ता जाएगा तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, ये, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये कब होगा? व्हेन I इज इक्वल टू E बाय R, है ना। तो ये तब हो जाएगा जब देखना कैपिटल R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तब ये। और ये तब होगा जब स्मॉल r इक्वल टू 0, ठीक है। स्मॉल r इक्वल टू 0, या कह सकते हो स्मॉल r इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू कैपिटल R, तब ये। एक्सक्यूज मी सर। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। सारियन साउंड। हाँ अक्षित एक और सवाल भी पूछ रहे हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो देखो पोटेंशियल और मीटर और वोल्टमीटर तो टोटली अलग चीज है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट हाँ, मैं एक लाइन में बस इसको अभी फिलहाल समेट रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर तो तब कर सकता हूँ जब दोनों हो जाए। तो अभी एक भी नहीं हुआ ढंग से, तो दोनों को क्या कंपेयर करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दैट पोटेंशियोमीटर इज अ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट देन अ वोल्टमीटर। और उसके पीछे रीजन है, रीजन जब हम दोनों को स्टडी करेंगे तो शायद खुद से ही समझ जाओगे, बट देन एनीवे वी विल डिस्कस दैट आल्सो, ठीक है ना। Now there is a query from Rohan Viran, that is potential difference अगर 0 हो जाए, जैसे V अगर 0 हो जाए तो करंट कैसे फ्लो होगा। Now first of all understand what is this V. This V is the external potential difference। इसका मतलब समझो, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सर्किट को क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है ना, सर्किट को क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। जैसे एक सिंपल सा सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो सपोज मैंने एक सेल लिया E, ठीक है, सॉरी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन तो V इक्वल टू 0 का है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूं कि सेल है और कुछ नहीं, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो 0 है, ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी तो 0 है। तो अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और करंट 0 है, सॉरी रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट तो फ्लो कर सकता है। ध्यान से सुनो, V इज इक्वल टू IR। V0, व्हाट यू आर आस्किंग इज V0 कैसे हो जाए और फिर करंट कैसे फ्लो करे, है ना, मैं समझ रहा हूँ। V इज इक्वल टू IR, V0 हो गया, R भी तो 0 है, क्यों, क्योंकि ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इनके रेजिस्टेंस तो हम 0 लेते हैं। तो V इज इक्वल टू IR में R0 V0, अब तो I कुछ भी हो सकता है। Then you can ask another question also. Now that you ask one question, then the question will come to your mind, and that is फिर I का वैल्यू कैसे सेट होगा ना। I का वैल्यू उस तार से सेट नहीं होगा, इस तार से सेट नहीं होगा, पर हाँ ये एक सच्चाई है कि उसमें V इज इक्वल टू IR वैलिड है। तो V0 हो गया इस तार के क्रॉस, R यानी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हमने तो 0 ले लिया, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं, तो एटलीस्ट इक्वेशन रिकंसाइल हो गया। पर हाँ क्वेरी रह गया
कि आई का सेटलमेंट कैसे होगा, कि 0 इज इक्वल टू समथिंग इनटू 0, तो वो जो समथिंग है वो कैसे सेटल होगा, तो वो सेटल यहाँ पे नहीं होगा, वो सेटल यहाँ पे, क्योंकि सेल का जो ताकत है वो है ई, है ना, ईएमएफ ताकत ई, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। इन जनरल जो करंट होता है वो होता है, इन जनरल जो करंट होता है, इन जनरल जो करंट होता है वो है ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पर क्योंकि इस बार कैपिटल आर को हमने 0 कर दिया, हमने कैपिटल आर रखा ही नहीं, तो ई क्या हो जाएगा, ई बाय स्मॉल, सॉरी आई क्या हो जाएगा, ई बाय स्मॉल आर। यानी सेल खुद ही अपना करंट तय करे, कैसे, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, उसके अंदर ईएमएफ भी है, यानी ताकत भी है करंट ड्राइव करने का, और रेजिस्टेंस भी है, तो बस सेल खुद ही डिसाइड कर रहा है करंट क्या होगा। यानी वो जो V इज इक्वल टू आई आर में आई मिसिंग था, वो आई यहाँ डिसाइड नहीं होगा, वो आई यहाँ डिसाइड। तो देयर इज नथिंग एज सच इररिकंसाइलेबल, ठीक है ना। और वही कोई क्वेरी है। अच्छा ठीक है, एनीवे लेट्स प्रोसीड। तो ये बेसिकली क्या है कि ये तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। थोड़ा सोच के देखो लॉजिकली, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो यानी सेल का सारा ताकत बाहर जा सकता है, मतलब बाहर ही जाएगा, जा सकता है क्या, बाहर ही जाएगा। समथिंग लाइक जो मैंने कल पार्टी का एग्जांपल दिया था, कि अगर मान लो मैं पार्टी दे रहा हूँ, 1000 रुपए है मेरे पास, और अगर मैं 4 लोगों को बुला रहा हूँ, और बाई चांस मान लो उस दिन मेरा फास्टिंग जो भी है मैं कुछ खा नहीं रहा, तो अगर मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं 250 रुपए के 4 थाली दे सकता हूँ, यानी 1000 रुपए में अब तो डोनेट तो नहीं कहूंगा, 1000 रुपए का मैं पार्टी देती, तो 1000 रुपए का मेरे पास फाइनेंशियल ताकत भी था और 1000 रुपए का पार्टी भी थी। अगर मैं भी खाता हूँ तो इन दैट केस फिर 5 थालियां हो, 4 लोगों को बुलाया, मैं अकेला हूँ, मैं भी हूँ, तो लाइक 5 हो गए, तो यानी फिर 800 रुपए का खिलाया, 200 रुपए का मैंने खिलाया। तो ये चीज है, अगर मान लो इंटरनेशनल है, और अगर इंटरनेशनल नहीं है तो पूरा 1000 रुपए खिला दिया, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अगर इंटरनेशनल नहीं होगा तो इन दैट केस जो ईएमएफ है वही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, तो ईएमएफ के बराबर। और अगर एक्सटर्नेशनल 0 हो जाए तो दैट केस बाहर के सर्किट को कुछ मिलेगा ही नहीं, सारा जो उसका ताकत है वो खुद के अंदर ही कंज्यूम होगा, या खुद के अंदर ही करंट ड्राइव करने में कंज्यूम होगा। दैट्स द एंटायर लॉजिक। नाउ लेट्स कम टू दिस V और कैपिटल R का वेरिएशन, ठीक है ना। तो V और कैपिटल R का वेरिएशन क्या होगा ना, देखो V है क्या, V इज इक्वल टू I कैपिटल R, इन I क्या है ना, E बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इनटू कैपिटल। तो मैं काम करता हूँ, जानबूझ के R से डिवाइड कर लो, हो जाएगा E बाय 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कैपिटल R से डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर R का वैल्यू 0 रखोगे, कैपिटल R का वैल्यू अगर 0 रखोगे, तो दैट केस ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या होगा, 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा अगर मान लो कैपिटल R का वैल्यू 0 रखोगे। आई थिंक वो तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाहर का क्या होगा, 0, इजंट इट, वही वाला केस, ये वाला R0। तो इससे भी पता चल रहा है, एक और तरीका है समझने का। अब R का वैल्यू बढ़ाते रहो, तो R का वैल्यू जितना बढ़ाओगे ना, उतना देखना इस फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा। कम होते होते जब R टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब जाके E होगा, यानी ग्राफ ऑफ E हो जाएगा E और S। देखो ठीक है, दोनों ग्राफ ओके है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेरी ये है, नेक्स्ट क्वेरी ये है कि पावर, है ना, तो पावर क्या होता है, पावर एक्सटर्नल सर्किट में हो जाता है I स्क्वायर इंटू R, where I is this E by capital R plus small is equal to E square R by R plus R। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका भी सवाल पूछता हूं, एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट पावर। लेकिन ये ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट पावर। एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पे दो रेजिस्टर्स है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी हीट जनरेट होगा, तभी तो एक सेल गर्म हो जाता है यूज करते हो, कोई भी सेल, चाहे मोबाइल का सेल हो, चाहे इन्वर्टर का बैटरी का जो सेल होता है, मतलब बैटरी होता है उसका हो, चाहे कोई सा भी हो, जब भी सेल यूज होता है तो गर्म होता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है। लेकिन वो जो गर्म होता है उसको हम लोग वेस्टेज पावर मानते हैं। क्यों, उसका क्या यूज करो,
कौन सा हम इन्वर्टर के बैटरी के ऊपर कोई केटल रख के चाय गर्म करते हैं कुछ ऐसा, मतलब कहने मतलब कि वो हीट जो है हम लोग वेस्टेज मानते हैं। तो देयरफॉर देयर इज अ पावर वेस्ट आल्सो एंड दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू स्मॉल r। आ गया? I स्क्वायर इनटू स्मॉल r इज द वेस्ट पावर और यूजफुल पावर यानी आउटपुट पावर क्या हो गया? I स्क्वायर इनटू कैपिटल R। ये दो पावर है, टोटल पावर तो I स्क्वायर इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब मेरा सवाल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P वर्सेस कैपिटल R। ये मेरा सवाल है टू ड्रॉ दी वेरिएशन ऑफ P वर्सेस कैपिटल। अब देखो जरा वेरिएशन। एक और क्वेश्चन आया दैट इज सर जब E पूरा सर्किट में जाएगा तब I जीरो थोड़ी ना होगा जो ग्राफ से आ रहा है। E जब पूरे सर्किट में जाएगा तो I जीरो। अच्छा अच्छा समझ गया। नहीं I जीरो तो हो रहा है ना। अभी इनफैक्ट मैंने एक चीज का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, वो है I। चलो ठीक है, मैंने एक्चुअली I का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, कोई बात नहीं। पावर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसी टाइप का I का ही ग्राफ। देखो ये पॉसिबल है कैसे? व्हाट यू आर सेइंग मैं समझ गया, इज दैट कि I का वैल्यू जीरो कैसे? कैपिटल R को इन्फिनिटी कर दो। देखो सेल तो तुमको दिया जाएगा क्योंकि सेल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में तो ये है ना कैपिटल R। और कैपिटल R जो रियोस्टेट होता है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल R जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस जीरो से लेके इन्फिनिटी तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो करंट जीरो हो गया, है ना? यानी कैपिटल R का टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो I टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर I टेंड्स टू जीरो होगा तो ये जीरो हो गया तो V क्या होगा? I के बराबर। तो देखो V क्या होगा? I के बराबर, सॉरी E के बराबर, E के बराबर। तो हर चीज पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए I जीरो होना कोई इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करो P का, P वर्सेस कैपिटल R। अगर V इज इक्वल टू जीरो, नो ड्राइविंग और स्टॉपिंग, नो करंट शुड फ्लो यूनिफॉर्मली। देखो यही क्वेश्चन आई थिंक रोहन वीर ने भी पूछा था कि V इज इक्वल टू जीरो को करंट इक्वल टू जीरो इंटरप्रेट मत करो इन एनी सर्किट। इवन अगर कैपिटल R लगा भी दोगे, पर सोच के देखो, अगर कैपिटल R लगा भी दोगे तो कैपिटल R तो यहाँ पे है। अगर मैं पूछूंगा इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो ही तो है या नहीं? इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से करंट जीरो होता है, ऐसे मत मान। ठीक है ना? अगर V इज इक्वल टू IR में R जीरो कर दो तो V जीरो हो गया, लेकिन I तो हो सकता है ना, क्या दिक्कत? देखो जीरो इज इक्वल टू 5 इंटू जीरो भी हो सकता है, जीरो इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो भी हो सकता है, कोई मना थोड़ी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है पर रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ये चक्कर हो। लेकिन ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दैट्स द पॉइंट। देखो V जीरो इज इक्वल टू मींस करंट जीरो, ऐसे इंटरप्रेट मत करो इन अ सर्किट, क्योंकि सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनके रेजिस्टेंस आप जीरो लेते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो ही लेते हैं, ऐसे कोई गलत कुछ नहीं। देखो सत्यम ऐसा नहीं है, इसके कुछ और इंटरप्रिटेशन है। हम लोग जो मानते हैं करंट में द चार्ज इज फ्लोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देयरफॉर देयर इज नो EM waves। so what he is asking basically what EM waves are, ठीक है? तो therefore there is no EM waves, ठीक है? चलो लेट्स प्रोसीड। ये पावर कैसे होगा? देखो इसका सर्किट का जो वो होगा, ये जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है ना पावर का, इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ। आई वांट टू राइट द एक्सप्रेशन लाइक दिस, E स्क्वायर अपॉन ये R स्क्वायर प्लस 2RR प्लस स्मॉल r स्क्वायर, तो इसको लिख दो R प्लस 2R प्लस R स्क्वायर बाय R। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जरा ध्यान से देखो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये है कि एज R टेंड्स टू जीरो, एज R टेंड्स टू जीरो तो क्या हो जाएगा? ये तो चलो जीरो हो गया, ठीक है, ये इंफिनिटी हो जाएगा।
यानी डिनोमिनेटर इंफिनिटी होगा, तो क्या होगा, p टेंड्स टू 0. नॉट ओनली दैट, as r टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी हो तो ये इंफिनिटी, चलो ये सब तो खत्म हो गया, ये तो डिनोमिनेटर में मतलब r स्क्वायर बाय r तो इंफिनिटी हो तो ये 0 हो गया, तो ये तो रूल खत्म हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, यानी डिनोमिनेटर पूरा इनफाइनाइट हो गया, तो ये क्या होगा, फिर से ये हो रहा है पावर टेंड्स टू 0, यानी as r tends to 0 power tends to 0, and as r tends to infinity power again tends to 0. That is the, ठीक है ना, that is the way it will happen. यानी पावर का जो वेरिएशन होगा ना वो देखना ऐसे. Now see, at some point the power is maximum. तो देखते हैं कब maximum. और वो p max हो गया, p max. अब कितना होगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अभी वही करना है मुझे, ठीक है ना. तो लेट्स सी. तो देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, न्यूमेरिकल पे डिपेंड तो कर नहीं रहा क्योंकि एक अलग सा एक्सप्रेशन हो गया, तो मैं काम करता हूं, लेट्स मैक्सिमाइज या लेट्स फाइंड मैक्सिमम. कैसे निकालेंगे इसको, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे, तो इसके लिए होगा डिफरेंशिएट करो तो 1, इसका तो 0 माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू, जब कैपिटल R होगा तो यानी द मैक्सिमम पावर आउटपुट विल हैपन व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r. इसको हम लोग बोलते हैं एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. इसी को हम लोग बोलते हैं एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. यानी is called as maximum power transfer theorem. इसका मतलब क्या हो गया, इन ए सर्किट P output is maximum when capital R is equal to small r. क्योंकि पावर आउटपुट रेजिस्टेंस में आ रहा है, तो देखो दोनों तरफ प्रॉब्लम. अगर मान लो रेजिस्टेंस को हाई करोगे तो आई स्क्वायर आर में से आर हाई होगा लेकिन आई लो हो जाएगा, और अगर आर लो करोगे तो आई हाई होगा पर आर लो है, तो देयरफॉर देयर इज अ ट्रेड ऑफ. और उस ट्रेड ऑफ से हमें अब पता चल रहा है कैलकुलेशन करके कि कैपिटल आर का वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर होगा तो इन दैट केस पावर मैक्सिमम, और वो पावर मैक्सिमम होगा कितना वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, है ना. सो दैट मैक्सिमम पावर विल बी हाउ मच, लेट्स सी. वो मैक्सिमम पावर कितना होगा, इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर. तो इसमें स्मॉल आर इज कैपिटल आर पुट कर लो, तो कैपिटल आर 2 कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर, यानी 4r होगा, यानी ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर. अब आर इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल आर पुट कर लो तो यू विल गेट दैट, ठीक है. तो p max आ गया कितना ना, यू नो, e square by 4r, so that means this maximum value of power p max is equal to e square by 4r. बिल्कुल, Maran, you are right, and that is p max हो जाएगा कितना ना, e square upon 4r. So that is the value of p max. Is that okay? चलो, so that was about power transfer in this case. यानी अब सर्किट के ऊपर हमने कई और भी एनालाइज कर लिया. वो अलग बात है कि हम लोगों का टॉपिक हेडिंग स्टार्ट हुआ था ईएमएफ निकालने, तो क्योंकि ईएमएफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स थे तो पहले वो कवर कर लिया. अब हम चलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट पे कि हाउ टू फाइंड आउट ईएमएफ, है ना. तो क्वेश्चन नाउ इज हाउ
टू फाइंड और कंपेयर, ठीक है। तो उसका आंसर ये है, या आंसर के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ा सा चीज को हमें सोचना जरा। सपोज मैंने क्या किया, मैंने कुछ सेल लगाया और लेटर से इसके अक्रॉस सपोज 10 वोल्ट, ठीक है, और लेटर से ये 40 सेंटीमीटर का वायर, तो सोच ले 40 सेंटीमीटर का वायर, लेटर से दिस इज 40 सेंटीमीटर वायर, दैट मींस देयर इज अ 1 volt drop every 4 सेंटीमीटर। आई होप द लॉजिक इज क्लियर कि भाई 40 सेंटीमीटर में अगर 10 वोल्ट होता है तो 4 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 वोल्ट। वेरी सिंपल लॉजिक, कोई इसमें कुछ हाईफाई नहीं। अब पता है क्या इसका मैं यूज कैसे करता हूँ, लेटर से ये है 10 वोल्ट और ये हो गया 0। सपोज क्या 11-1, 15-5, 12-2 इस तरीके से भी हो सकता है, पर क्या फायदा है इधर उधर का लेने के। सिंपल लिया 10 और 0, 10 वोल्ट लिया तो 10 और 0। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेल लेता हूँ, सपोज वो सेल है 4 वोल्ट। तो लॉजिक देखना जरा अच्छे से, मैं ना कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, ये जो 4-4 सेंटीमीटर में पॉइंट्स लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से इनके पोटेंशियल्स क्या होगा ना। एवरी 4 सेंटीमीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट और राइज ऑफ 1 वोल्ट, वो डिपेंड करते कि इस तरफ से जा रहे हो उस तरफ से आ रहे हो। अगर इधर से इधर आओगे तो एवरी 4 सेंटीमीटर देयर इज अ राइज ऑफ 1 वोल्ट, और अगर इधर से इधर जाओगे तो एवरी 4 सेंटीमीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अब मैं एक काम करता हूं, इनके पोटेंशियल्स नोट कर लेता हूं। तो 4 सेंटीमीटर दूर इसका पोटेंशियल क्या होगा, 9 वोल्ट। इसका क्या होगा 8 वोल्ट, इसका क्या होगा 7 वोल्ट, 6 वोल्ट। फिर अगर यहाँ पे कर रहे हो तो 5 वोल्ट। मैंने एक का वोल्ट लिखा है, बाकी का वोल्ट नहीं लिखा है, तो ये जो नंबर्स में लिख रहा हूँ वही वोल्ट है। तो ये 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5। सिंपल है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ और इसको जोड़ता हूँ, यानी एक वायर लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक गैल्वेनोमीटर ले लो सो दैट यू कैन मेजर द करंट, गैल्वेनोमीटर इज सपोज, और इसको ज्वाइन करता हूं। अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो बताओ मुझे कि करंट इस वायर में, करंट इस वायर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अप या डाउन, ये बताओ। इस वायर में, इस वाले वायर में करंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अप या डाउन, बताओ। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग, आस्किंग रादर, कि इस वाले वायर में करंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यस, ओके। धैर्य ने आप बोला, लक्ष्य ने भी आप बोला है, और कोई, सत्यम आप, ठीक है, सक्षम, अक्षित, सबने आप बोला। अब इसका लॉजिक क्या है, बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं यहां से जाता हूं तो ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट घटेगा बिकॉज आई एम गोइंग अगेंस्ट द सेल। तो देयरफॉर इस पॉइंट का, यानी ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 6 वोल्ट। ये सपोज 4 वोल्ट का बैटरी, यानी ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 6 वोल्ट। ये 9 वोल्ट है तो ऑब्वियसली 9 से 6 ऊपर जाएगा। अगर मैं इस वायर को यहां पे कनेक्ट करता हूं तो भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अभी भी 8 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करता हूं तो भी ऊपर जाएगा, भले ही कम जाए ज्यादा जाए वो अलग बात है, बट ऊपर जाएगा। क्यों, अभी भी ये 7 वोल्ट 6 वोल्ट तो यानी हायर से लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं उसको यहां पे कनेक्ट करता हूं, है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, एंड दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज। तो बेसिकली हुआ क्या ना, देखो ऊपर 4 वोल्ट का बैटरी है और ये देखो 0.6 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, तो यानी नीचे भी 4 वोल्ट। यानी ये बैलेंसिंग, इसको हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। ये बैलेंसिंग कब होगा, जब इसका ईएमएफ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबरी पे आ जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, ये बैलेंस्ड कंडीशन होगा, यानी नो करंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो देयरफॉर
EMF should be equal to potential difference here. अब ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके मैंने करके दिखाया, इसको एक काम करते हैं फटाफट जनरलाइज कर ले. So let me do this only, but in a more generalized manner, है ना? इसी को जनरलाइज मैनर में करते हैं तो देखते हैं क्या आता है. तो उसके लिए ये हो जाएगा कि अगर मान लो सेल ऑफ EMF E है और अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, मान लो ये भी एक सेल से ड्राइव होगा ऑब्वियसली, तो अगर यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस V है और मान लो कैपिटल L लेंगे, तो जैसे इसमें लिखा था 1 वोल्ट ड्रॉप एवरी 4 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा 1 वोल्ट ड्रॉप एवरी L बाई V सेंटीमीटर. तो वो 4 आया कैसे था 40 बाई 10, तो 40 की जगह L कर दिया और 10 की जगह V कर दिया जनरल. अब ये बैलेंस कैसे होगा ना, बैलेंस तब होगा जब गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे रखोगे और ये स्मॉलर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, है ना. तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि अगर मान लो यूनिट लेंथ पे यानी 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 1 वोल्ट ड्रॉप, तो चलो इतने लेंथ पे हो रहा है, तो E वाला कितने में होगा, है ना. दैट्स व्हाट टू लुक एट इट. यानी V वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है L सेंटीमीटर, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है L बाई V पे, है ना. और E वाला ड्रॉप कितने में होगा, E वाला ड्रॉप कितने में होगा, या इसको इस तरह से कर देते हैं कि L सेंटीमीटर में V ड्रॉप हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा तो V बाई L. इसको उल्टा कर देते, तो L सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप, है ना, तो V बाई L इंटू स्मॉल एल. और मतलब इसको रिवर्स कर देता है रोज, और ये E के बराबर होगा तो ही बैलेंस्ड होगा. तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं आराम से दैट E will be equal to V by capital L into small l. The only problem is that जनरली देखना ये जो कैपिटल V है ना, कैपिटल V ये पता नहीं चलता है सर्किट, इसलिए इसके एक डमी एक्सपेरिमेंट भी हमें करना पड़ेगा. मतलब क्या कि सपोज मैंने क्या किया, एक नॉन ईएमएफ ले, नॉन ईएमएफ सपोज मैंने E1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा ना, नॉन ईएमएफ को अगर लेके करते हो तो इन दैट केस क्या होगा ना, E1 will be equal to V by capital L into small l. ये नोन वाला है तो उसके लिए जो होगा वो मान लो L1 हो गया. फिर एक अननोन ले लो E2, तो E2 के लिए क्या होगा, E2 के लिए हो जाएगा V by L into L2. तो देयरफॉर एक नोन लेके कर लो, एक अननोन लेके कर लो, उसके बाद डिवाइड कर लो, उससे फायदा क्या होगा ना, जो कैपिटल V है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना. उससे ये फायदा हो जाएगा कि कैपिटल V के नॉलेज के बगैर मेरा क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना. So what will happen now is that if I divide these two, so it will happen like this, that E1 by E2 will be equal to V by L, और V by L cancel होगा तो L1 by L2. So if one of the EMF is known, the other unknown can be found out. The other unknown can be found out. ठीक है ना. अब मान लो तुम कहोगे नहीं, अगर मान लो दोनों अननोन हुआ तो इन दैट केस कंपेयर कर पाएंगे कि भाई 2:3, 3:5 या जो भी 5:7 जो भी होना, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल. So therefore ये जो डिवाइस है, this device is given a slightly different name and that is called as potentiometer.
ठीक है ना. दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियोमीटर. ओके, इससे क्या हो गया, अब कोई सा भी अननोन ईएमएफ हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आई हैव वन नोन ईएमएफ. अब मान लो मेरे पास 100 सेल्स है, एक नोन है बस, तो मैं एक एक करके धीरे 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 सारे 99 अननोन सेल्स की ईएमएफ को मैं निकाल सकता हूं. नाउ दैट इज द वे इट हैपेंस. ठीक है, तो लॉजिक एक बार देख लो कि लॉजिक यही है कि ऊपर का ईएमएफ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जब बैलेंस्ड हो जाएगा, इन दैट केस क्या होगा, यानी बराबर हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर ऑफ करंट नहीं है. दैट विद द बैलेंस्ड कंडीशन, उसी का फायदा उठाया हमने और इससे आंसर आ गया. Now this is what is called as a potentiometer. Potentiometer का एक और भी यूटिलिटी है. Now let's quickly go through that, and that is to find out internal resistance. तो मैं एक काम करता हूँ, instead of introducing it as a theory, ठीक है ना, instead of introducing it as a theory कि भाई ये टॉपिक है और इसका ये, मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बना देता हूँ. तो न्यूमेरिकल को एनालाइज करोगे तो वो थ्योरी खुद ही आ जाए. ठीक है ना. So let me give you a question based on this. The question is like this: that suppose मैंने क्या किया, मैंने एक सेल लिया, सेल है 20 वोल्ट का, ठीक है, 20 वोल्ट का, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम, और ये जो है ना, ये है सपोज 80 सेंटीमीटर का, और मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है सपोज 8. ठीक है, 80 सेंटीमीटर का वायर है और 8 ओम का रेजिस्टेंस, 80 सेंटीमीटर 8 ओम. मैंने क्या किया, एक और वो लिया, सेल ली, ठीक है, और उसके पैरेलल में एक कैपिटल आर भी लिया, सपोज 12 ओम. ठीक है, स्विच ऑफ है, ये स्विच है. तो मैंने देखा कि व्हेन एस इज ऑफ, ठीक है ना, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग जो लेंथ है वो है सपोज 30 सेंटीमीटर, एंड व्हेन एस इज ऑन, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है सपोज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दो है, एक है इसका ईएमएफ निकालो और एक है इसका रेजिस्टेंस निकालो. फाइंड आउट ई एंड फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो. ठीक है, ये देखिए, ओके, यू नो दिस आल्सो ब्रिंग्स अस टू अनदर क्वेश्चन. और इस पे ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ, अक्षत ने भी पूछा है, और वो थोड़ा रेलेवेंट भी है, तो थोड़ा सा एक चीज समझ लो. यू माइट हैव अ क्वेरी, एंड दैट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालने के लिए मैं ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ. ये तो बड़ा टेक्निकल, ये वो, फिर ये भी बड़ा टेक्निकल सा है. ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता ही है, वोल्ट मीटर वगैरह, तो उसको लगा दो, वोल्टेज निकाल लो. देखो आप सुनो ध्यान से, ये जो तरीका भी सोच रहे हो या बता रहे हो, या मैं ही बता रहा हूँ, या कुछ लोग शायद ऑलरेडी सोच रहे होंगे, इसमें एक फ्लॉ है. पता है फ्लॉ क्या है, कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्टमीटर, तो ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करंट पास कराना पड़ता है. अब आ गया, करंट जो पास होगा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो इंस्ट्रूमेंट का अपना रेजिस्टेंस होता है,
यानी सर्किट में तुमको एक पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया, लेकिन तुमको उस पैरामीटर निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना है, और उस इंस्ट्रूमेंट का भी तो अपना रेजिस्टेंस होता है। यानी जो ओरिजिनल सर्किट था वो तो रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएगा, कहीं सीरीज में होगा, कहीं पैरेलल में होगा, वो अलग बातें बड़े ऐड तो हो गई। देयरफॉर कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर नीडल वाले डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट से अगर मान लो निकालना चाहते हो वैल्यू, या इवन आजकल तो डिजिटल आ गया, उसमें भी सेम चीज, अगर मान लो डिजिटल हो या नीडल वाले इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें अगर वैल्यूज निकालना चाहते हो, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज, तो उसके लिए उस इंस्ट्रूमेंट को तार के साथ जोड़ना पड़ता है, और उसके जो रेजिस्टेंस है वो भी उस सर्किट में अटैच हो जाता है। अटैच इन द सेंस कि वो भी एक पार्ट ऑफ द सर्किट हो जाता है। तो देयरफॉर सर्किट का पैरामीटर बदल जाता है। अब पता प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर तुमको ऑलरेडी पता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ही वो है कि उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ऐसे अगर है तब तो चलो ठीक है। बट कैसे पता, हो सकता है उल्टा भी तो होगा कि पता चला सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है और पता चला हमारा इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस 80 ओम है। जैसे इंट्रोड्यूस किया तो करंट एकदम से बदल गया, और करंट बदलने के बाद का वैल्यू हम मेजर कर, तो विल इट बी एक्यूरेट? नेवर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये वाले सर्किट्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। कल जो किया था वो भी, ये भी, और अभी ये डिस्कशन शुरू किया मैंने, यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर होगा। ये जो डिस्कशन शुरू किया मैंने, ये भी बहुत एक्यूरेट है। उसके पीछे रीजन है कि इसमें सर्किट डिस्टर्ब नहीं होता है। से क्यों सर्किट क्यों नहीं डिस्टर्ब हो? सर्किट तो बनाया हुआ है। सर्किट डिस्टर्ब इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम मेजरमेंट कब कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम मेजरमेंट, देखो सर्किट में अगर जोड़ोगे तो डिस्टर्ब तो होगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम मेजरमेंट कब कर रहे हैं? उस समय कर रहे हैं जब इसका करंट जीरो है। यानी हम मेजर कर रहे हैं बैलेंस्ड कंडीशन, यानी जब इसका वैल्यू यानी गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो है। तो ये बताओ, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर करंट जीरो है, तो ध्यान से देखो, सोच के देखो लॉजिकली, अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो है यानी उस सर्किट में तो कुछ पास ही नहीं हो रहा। तो जब इस सर्किट में कुछ पास ही नहीं हो रहा है, इन दैट केस उसका रेजिस्टेंस या कोई और सर्किट का कुछ और पार्ट का रेजिस्टेंस मैटर तो कर नहीं रहा। क्यों भाई? रेजिस्टेंस कब मैटर करेगा? जब वो भी सर्किट में इन्वॉल्व हो, करंट पास हो रहा होगा उसमें, तो वो भी कुछ ऑपोजिशन ऑफर कर रहा होगा या समथिंग लाइक दैट। जब उस पोर्शन में करंट ही नहीं पास कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए ये वाले सर्किट्स ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है कंपेयर टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर वगैरह। क्योंकि इनमें से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जब जोड़ते हो सर्किट में, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट की वजह से होता है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में भी करंट जाता है, यानी उसका रेजिस्टेंस भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है सर्किट, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, तीनों एक्सपेरिमेंट में हम बैलेंस्ड कंडीशन में मेजरमेंट्स कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस एक्सपेरिमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी एक्यूरेट। इनफैक्ट तभी एक क्वेश्चन आया था, मैं बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद दूंगा मैं इसका जवाब और वो था कि somebody had asked earlier, मैं बोला था थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा, एंड दैट इज कि वोल्टमीटर क्यों ना यूज करें, या वोल्टमीटर और इसमें क्या कंपैरिजन ही है कि वोल्टमीटर से भी वोल्टेज निकलता है और इससे भी वोल्टेज डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली निकलता है या ईएमएफ निकलता है, लेकिन ये एक्यूरेट है और वोल्टमीटर वाला उतना एक्यूरेट कब नहीं। ठीक है ना? दैट्स द नेट आंसर। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बैलेंसिंग लेंथ 30 है, तो पहले तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट, 2 ओम और 8 ओम, तो ये 10 ओम। तो ये करंट हो गया, इसका करंट हो गया 2 एम्पीयर। इसका करंट 2 एम्पीयर मतलब इसका जो वोल्टेज है वो हो गया 16 वोल्ट, है ना? तो ये हो जाएगा 16 वोल्ट। चलो यहीं पे लिख दो। ठीक है, यानी 80 सेंटीमीटर, 8 ओम, 16 वोल्ट, ये पूरा 16 वोल्ट। तो पहला बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो उससे क्या होगा? ईएमएफ आएगा क्योंकि वो स्विच ऑफ है। ये स्विच ऑफ है मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, और ऊपर ऊपर का जो करंट था वो भी बंद कर दिया मैंने, क्यों? गैल्वेनोमीटर बैलेंस करने के बाद रीडिंग आ रहा 30 सेंटीमीटर। इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि 80 सेंटीमीटर में 16 वोल्ट, ये देखो 16 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर में 16/80 वोल्ट, 30 सेंटीमीटर में 16/80 इंटू 30 यानी 6 वोल्ट।
तो ईएमएफ तो आ गया, ठीक है ना। सो द ईएमएफ नाउ इज इक्वल टू 6 वोल्ट। हाँ ठीक है, सत्यम ने आंसर दे दिया 6 वोल्ट आंसर है, कार्तिक ने भी ये बोला कि हाँ मेरा भी सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी इसका ईएमएफ आ गया 6 वोल्ट। अब जब मैं इसको स्विच ऑन कर देता हूं, जब मैं इसको स्विच ऑन करूंगा इसको, तो बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग लाइन 20 हो गया, ठीक है ना। तो उस 20 को हम कैसे इंटरप्रेट करें ना, 20 को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, इस 20 को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि 20 सेंटीमीटर इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि 20 सेंटीमीटर वोल्टेज क्या होगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 16/80 इंटू 20, 16/80 इंटू 20 यानी 4 वोल्ट, सिंपल। अब इस पे क्योंकि अब स्विच ऑन हो चुका है ये वाला, तो देखना इस पे करंट जाएगा, इस पे भले ही ना जाए क्योंकि ये तो बैलेंसिंग कंडीशन में ना, पर इस पे तो जाना, तो उसका करंट क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका करंट हो जाएगा, यहाँ वाला करंट हो जाएगा इक्वल टू ई तो आ चुका है 6 वोल्ट, 6 बाय कैपिटल आर तो पता है 12, स्मॉल आर नहीं पता, तो काम पर इसको 12 भी लिख 12 प्लस स्मॉल आर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, क्योंकि जो बैलेंसिंग कर रहा हूं मैं, ये जो 4 वोल्ट आया, इसका मतलब क्या कि इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, तभी तो ये 4 वोल्ट 20 सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है ना। ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 वोल्ट हो रहा है, और वो बैलेंस कर रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस कर रहा है। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई इंटू 12 आई आर, ठीक है ना। एक बार देख लो इसको, तो देयरफॉर आई यानी 6 बाय 12 प्लस आर, ये हो गया इस पोर्शन का करंट, इनटू इसका रेजिस्टेंस 12 इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस 20 सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है, और 20 सेंटीमीटर में 4 वोल्ट हो रहा है, दैट मींस दिस हैज टू बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो यानी चाहो तो कैंसिल कर लो, 4 से ये 3 पे कैंसिल होगा तो 18, यानी 18 इज इक्वल टू 12 प्लस आर, यानी R is equal to R is equal to 6, ठीक है। देखो 12 और R पता है पैरेलल कब होता है, अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि 12 और R पैरेलल में नहीं है क्या। देखो यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, बैलेंस कंडीशन है ना। अगर बैलेंस नहीं होता यहाँ पे भी करंट जाता तो फिर इन दैट केस ये और ये पैरेलल लिया जा सकता, वो भी सेल है, तो सेल अगर होता तो स्ट्रिक्टली सीरीज पैरेलल का हिसाब किताब बनता है, कि पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, जबकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगी, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें सेल भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो सेल होने से ना रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज पैरेलल की तरह इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया होता है ना कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल, वो सेटिस्फाई हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस में सेल का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है ना। जबकि हम तो पैरेलल का डेफिनेशन क्या दिया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, और अगर सेल बीच में आता है तो पूरे सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ना कि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ठीक है। कुछ मायने में पैरेलल का कंसेप्ट काम करता है, कैसे ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर मान लो मेन करंट आया तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उतने में करता है, पर सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है पैरेलल में, इसलिए हम लोग सीरीज पैरेलल अवॉइड करते हैं अगर मान लो रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और भी उस सर्किट में उस सेक्शन में मौजूद है तो, ठीक है ना। दैट्स द वे वी डू। चलो एनीवे, मैं उस वर्डिंग्स को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारे कंसेप्ट या तुम्हारे आइडिया जो दिमाग में आ रहा है पैरेलल के कहने के वजह से, वो मैं काउंटर करना चाह रहा हूं, ध्यान से। इसका करंट और इसका करंट जीरो, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो करंट है बैलेंस कंडीशन में, यहाँ पे अगर जीरो करंट है यानी करंट जा रहा है जीरो तो आ रहा है जीरो, यानी बैलेंस कंडीशन में ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है। देयरफॉर करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 करके जा रहा है, यानी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये वायर्स है भी, क्योंकि होते हुए भी कोई रोल तो प्ले नहीं कर रहा है, करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, यानी बेकार ही है। तो देयरफॉर करंट यूं ऐसे करके जा रहा है,
therefore small r और capital R in series है, इसलिए प्लस ये बात, ठीक है ना। बाकी स्मॉल 6 ओम आ गया, तो ये हो गया 6 वोल्ट और ये हो गया 6 ओम। अच्छा ये तो हो गया एक न्यूमेरिकल, बट मान लो मैं इसको अगर जनरलाइज करना चाहूंगा तो क्या होगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट क्विकली हमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मान लो ये V हो गया और रेजिस्टेंस जो भी है, ये V हो गया, ये L हो गया, और यहाँ पे EMF हो गया, और ये कैपिटल R, ये हो गया E स्मॉल r। तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रख के मैं इसको बैलेंस कर, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये बैलेंस कर। तो व्हेन S इज ऑफ, तो सपोज बैलेंसिंग लेंथ है L1, ठीक है, और जब S इज ऑन तो सपोज बैलेंसिंग लेंथ है L2, ओके। यानी S जब ऑफ है तो सेल के पुट EMF को बैलेंस कर रहा हूं, है या नहीं। यानी मैं लिख सकता हूं therefore V by L into L1 is equal to EMF। यानी नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें L लेंथ पे तो कैपिटल V है, तो स्मॉल L1 लेंथ पे क्या होगा, स्मॉल L1 लेंथ पे क्या होगा, V by L into L1, और वो क्या है, वो EMF ऑफ द सेल के बराबर है, तो EMF ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जब सेकंड एक्सपेरिमेंट में L2 आ गया तो क्या हो गया, देखो इसका वोल्टेज होगा IR, तो मैं लिखूंगा सेकंड में V by L into L2 is equal to IR is equal to E by small r plus capital R into R, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में ये तो खत्म कर दो, V by L into L2 is equal to this। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो दोनों का अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ देम। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो पहले रिलेशन देख लो, इसमें अगर कोई दिक्कत तो है। ये कई बार हो रहा है इसलिए मैंने ऊपर बांध के रखा है। अच्छा तो इसमें क्या हो गया फिर, है ना। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो V by L तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, बचेगा देखना L1 by L2, ठीक है। बचेगा देखना L1 by L2 इधर लेफ्ट साइड। राइट साइड में भी देखो E by E कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू R प्लस R by R, ठीक है, इज इक्वल टू 1 plus small r by capital। So therefore, small r by capital R is equal to L1 by L2 minus 1, and small r is equal to capital R into तो small r is equal to capital R into, ये आप जनरलाइज रिजल्ट, L1 by L2 minus 1, ठीक है। अब चेक कर लो, आई होप दैट्स ओके ना। तो यानी अब क्या हो गया, 3 डिवाइसेस हो गए अभी तक। नंबर 1 मीटर ब्रिज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2 पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन EMF और कंपेयर। और तीसरा हो गया गिवन अ नोन रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक नोन रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। गिवन अ नोन रेजिस्टेंस कैपिटल R वी कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन सेल। और मैं एक लास्ट कल्मिनेटिंग चीज कहना चाहूंगा, एंड दैट इज कि ये एक्सपेरिमेंट्स काफी एक्यूरेट माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये बैलेंसिंग के टाइम हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं और इस वजह से इनको काफी एक्यूरेट माना जाता है।
ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर से उतने एक्यूरेसी नहीं बन पाता। फाइन। अच्छा, नाउ लेट्स फोकस आवर अटेंशन टू गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। एक्चुअली क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल में एक ही इंस्ट्रूमेंट है इन सब में, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनोमीटर। Actually, all are, you can say offshoots of that instrument only, and that is a galvanometer. Galvanometer को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं into ammeter and voltmeter by making some necessary changes. ठीक है ना, कुछ नेसेसरी चेंजेस करके हम गैल्वेनोमीटर के को कन्वर्ट कर देते हैं वोल्टमीटर, एमीटर। नहीं, इसमें कन्वर्शन का क्या रोल है या कन्वर्शन की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि देखो ज्यादातर जो गैल्वेनोमीटर्स है ना, उसके मेजरमेंट का जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज मतलब जितना मैक्सिमम झेल सकता है। अब देखो एक इंस्ट्रूमेंट मान लो सिर्फ 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, और उसमें अगर तुम 500 मिली एम्पियर पास करा दोगे जबरदस्ती, तो क्या होगा, उसमें ना स्प्रिंग होता है, बहुत ही डेलिकेट एक स्प्रिंग होता है, और वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, जिससे मेजरमेंट्स वगैरह होता है। दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, स्पेशल अलॉय है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। वो स्प्रिंग बड़ा डेलिकेट सा है, अगर कुछ ज्यादा करंट पास कर दे तो क्या होता है, वो फिर ट्विस्ट हो जाता है और नहीं तो टूट भी सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट का, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का मेजर खर्चा उस स्प्रिंग में आता है। बाकी तो नॉर्मल प्लास्टिक वास्टिक, नीडल विडल तो क्या कॉस्ट आएगा, है ना, ग्लास वास जो प्लास्टिक प्रो होती है तो उसको भी ज्यादा कॉस्ट आता नहीं, लेकिन उस स्प्रिंग का कॉस्ट आता है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट का आधा कॉस्ट समझ लो स्प्रिंग का। दैट इज वेरी डेलिकेट एंड एक्यूरेट स्प्रिंग, और वो थोड़ा अलग टाइप का स्प्रिंग है, वैसे वाला स्प्रिंग नहीं होता, ये ट्विस्टिंग स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का। तो एनीवे, लेट्स लीव दैट असाइड राइट नाउ। अब 10 मिली एम्पेयर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट में 500 मिली एम्पेयर तो पास करा नहीं सकते, लेकिन हमारे जो ज्यादातर सर्किट्स होता है उसमें तो 500 क्या 5000 मिली एम्पेयर भी हो सकता है। 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर होते हैं 5000 मिली एम्पेयर। तो ऐसे में हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर नहीं पाएंगे, हम उसको किसी तरीके से कन्वर्ट करके 5000 क्या 10,000 20,000 लायक भी बनाएंगे, यानी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। एमीटर का काम है करंट मेजर करना, वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। सिंपल। कैसे करते हैं, है ना? तो पहली बात तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, एज आई सेड, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल है और उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, और हर गैल्वेनोमीटर का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि इतना मैक्सिमम करंट ये ले सकता है, यानी अलाउ कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर उससे ज्यादा करंट दोगे तो मेजर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन झेल लेगा कम से कम। यानी अगर मान लो 10 मिली एम्पियर होता है गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब क्या है, जो उसका फ्रंट में डायल रहता है, जैसे एक देखना इंस्ट्रूमेंट लगभग ऐसे देखने में, दिस हाउ द इंस्ट्रूमेंट लुक्स, और यहाँ पे देखना एक डायल है, अप्रोक्सीमेट लुक है, और वो जो डायल होता है उसमें एक नीडल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना ऐसे करके रहेगा और वो नीडल अलग अलग रीडिंग दिखाएगा। दैट्स हाउ द लुक ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से होता है। अब इस गैल्वेनोमीटर का एक रेंज है, तो जनरली क्या होता है, ये जो डायल है मैं इसको अगर बड़ा करके दिखाऊं कुछ ऐसे, तो ये नीडल हो गया ऐसे करके, और इसके ऊपर निशान लगा इस तरीके से। तो इधर 0 होता है और इधर मान लो लेट्स से 10 मिली एम्पियर, और इधर भी सपोज है 10 मिली एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर में ना कोई डायरेक्शन वाला इशू नहीं, कोई इधर करंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर करंट नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका नीडल होता है बीच। तो एक तरफ करंट होगा तो नीडल इधर डिफ्लेक्शन दिखा देगा, उस तरफ करंट होगा तो नीडल उस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा देगा। दैट्स हाउ इट इज रिकंसाइल्ड, ठीक है ना। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10 मिली एम्पियर लेटेस्ट से। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का 12 होगा 15 होगा, वो तो अलग अलग है। सो लेट अस कॉल इट एज आई जी, यानी द मैक्सिमम करंट दैट द गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। अब ये मेजर वाला क्या हिसाब है कि अगर मान लो 10 मिली एम्पियर करंट पास करते हो, इन दैट केस नीडल अपने लास्ट पॉइंट पे ऐसे, बट सपोज किसी वजह से तुमने पास कर दिया 11 मिली एम्पियर, तो क्या होगा, वो वहीं पे अटक जाएगा, वहां पे नेक्स्ट स्टॉप होता है। तो नीडल यहां से यहां तक जा सकता है, उसके बाद जा नहीं सकता, वो अटक जाए। अगर तुमने 11 दिया तो वो एक्चुअली नीडल और जाना चाहता है, पर उसको स्टॉप लगा रखा है, तो नीडल वहीं पे आके अटक जाए। पर ठीक है, 11-12 तक तो कम से कम खराब नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे तुम करंट को वो कर दोगे, हटा दोगे, तो देखना नीडल वापस अपने 0 पे आ जाए। बट अगर मान लो तुमने पास कर दिया 70 मिली एम्पियर, तो क्या होगा, वो स्टॉप तो है
पर वो इतना ज्यादा तेज से जाके हिट करेगा, उसका स्प्रिंग पे खराब हो जाएगा, और जब करंट जीरो करो तो पता चला वापस भी नहीं आया, वहीं पे अटका, या अगर वापस भी आया तो पता चला ऐसे रहे, जीरो पे आया, एंड सो ऑन. तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. all depends on actually the resilience of the instrument and also how much current extra you are passing. तो 10 मिली एम्पेयर के गैल्वेनोमीटर में 11-12 करते हो तो इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होगा, लेकिन मेजर नहीं कर पाए. That's why IG is called as the range, that the maximum the instrument can measure, range of galvanometer. Okay? गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होता है, तो लेट अस कॉल the resistance is suppose Rg. So this is the resistance of galvanometer. अब मुझे सपोज मेजर करना है यही 10 मिली एम्पेयर वाला गैल्वेनोमीटर को यूज करके, सपोज मुझे मेजर करना है 6 एम्पेयर. 6 एम्पेयर करनी कम नहीं होता, 6 एम्पेयर मतलब हो गया 6000 मिली एम्पेयर, 6000 मिली एम्पेयर, और ये 10 मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं, यानी 600 टाइम्स. यानी ऐसे तो मेजर कर नहीं पाए, तो हमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे. तो लेट अस से I इज द टारगेट. टारगेट क्या है? ये 10 मिली एम्पेयर वाला इंस्ट्रूमेंट 6 एम्पेयर मेजर करने लायक बने, तो यानी हमारा टारगेट को 6 के लायक बने, तो उसको मैंने I कर दिया, टारगेट फॉर. अब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बदल जाएगा, एमीटर. ठीक है, टारगेट फॉर द एमीटर, यानी इतने का मुझे बनाना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं सोचूंगा कि इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह से पास कर दो, वो तो चलेगा, यानी हमें इंस्ट्रूमेंट को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा करंट तो वो झेल ही नहीं पाएगा. बचाने का तरीका क्या हो सकता है? वी विल अटैच समथिंग इन पैरेलल. मतलब क्या? ये सपोज मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, दिस इज द गैल्वेनोमीटर. मुझे आई मेजर करना है, तो ये आई अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएंगे तब तो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दूंगा. दिस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस. पैरेलल में लगाने का फायदा क्या हो गया कि देखो, जो करंट है वो अब इसके थ्रू जाएगा ही. अब देखना मेजर करंट इससे चला जाएगा. क्यों? बिकॉज RS इज केप्ट वेरी वेरी लो. तो अगर RS की वैल्यू बहुत कम रखो तो क्या होगा? करंट फिर यहां से उधर से निकल जाएगा मेनली. बट देन यू माइट हैव अ क्वेरी, एंड दैट इज, फिर तो असली करंट तो मेजर ही नहीं कर पाया. ना, यहाँ पे देखो एक चालाकी करेंगे, तो इसको फील करो कैसे. सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज मैं कहता हूं कि लेट अस से ये 999 ओम है और ये सपोज 1. ये एग्जांपल है, ध्यान रखो, क्योंकि ये 999 नहीं है, ये RG है, ये जनरलाइज्ड है, कुछ भी हो सकता है. मैं एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि असली करंट तो आई मेजर करना था, वो तो आपने मेनली यहां से पास करा दिया, बचा कुछ करंट ही तो जाएगा. तो बचा कुछ करंट तो जाएगा, लेकिन एक सर्टेन फ्रैक्शन में जाएगा ना, रेशियो में जाएगा. तो मैं उसको यूज करके दूसरा कैलकुलेशन कर लूंगा. कैसे? तो देखो, सपोज अगर यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, तो क्या होगा? 999 मिली एम्पियर यहां से, और यहाँ पे 1 मिली एम्पियर जा रहा है, वो रेशियो करके डिवाइड हो जाएगा. इसके थ्रू जाएगा 1/1 + 999 यानी 1000. तो 1/1000 मतलब 1 मिली एम्पियर. इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 एम्पियर में से 999 मिली एम्पियर वहां जाएगा, 1 मिली एम्पियर यहाँ आएगा. पैरेलल का डिस्ट्रीब्यूशन याद है ना? लेकिन ये तो मुझे मालूम है ना कि इसके 1 मिली एम्पियर का मतलब वहां पे 1 एम्पियर है. अच्छा, अगर मान लो 1 के जगह सपोज यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे 4 मिली एम्पियर और वहां पे 4 × 999 एम्पियर. यानी पता तो चल गया ना कि अगर मान लो इसका नीडल 4 मिली एम्पियर दिखा रहा है, तो यानी एक्चुअल सर्किट करंट क्या है? 4 एम्पियर. अब आज 999:1 लिया, तो इसलिए वो कैलकुलेशन हो गया. कल को ये रेजिस्टेंस कुछ और, ये भी कुछ और होगा, तो कुछ और कैलकुलेशन होगा. यानी कैलकुलेशन से मुझे पता तो चल गया ना कि इसका करंट जब इतना है, तो यानी सर्किट में एक्चुअली कितना है. तो ये एक आसान एग्जांपल लिया, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो देयरफॉर अब पता है क्या हो गया कि अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस RS है और अगर इसका RG है, ये एग्जांपल था, इसको अब मत देखो. 999 और 1 तो जस्ट समझाने के लिए. तो इसका मतलब इसका करंट क्या होगा, है ना? इसका करंट हो जाएगा I
इंटू RS बाई RS प्लस RG, याद है ना, दो में पैरेलल। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैक्सिमम करंट मेजर करने लायक जो एमीटर बनाना था उस समय गैल्वेनोमीटर के अपने मैक्सिमम करंट के बराबर जाए, तो बाकी तो अपना झेल लेगा, उससे नीचे वाला करंट। तो therefore the calculation will now become that this should be equal to IG, देख लो अच्छे से, this should be equal to IG, बस that's it। कि अगर मेन सर्किट करंट आई हो, मेन सर्किट करंट अगर आई हो, इन दैट केस जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा वो जाएगा ही, और वो IG होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब मैं मैक्सिमम करंट यहां से पास कर रहा हूं तो इसका भी अपना मैक्सिमम करंट होना चाहिए, तभी तो रेंज का रिकंसाइल होगा। Therefore इसको अगर मैं पलट देता हूं, ये बन जाएगा RS प्लस RG बाई RS इज इक्वल टू I अपॉन IG, ठीक है ना। यानी 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 1 प्लस RG बाई RS इज इक्वल टू I बाई IG, यानी RS इज इक्वल टू, अब आ जाएगा IG RG बाई, यानी क्या करना पड़ेगा, अगर एक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को तुमको एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर में कभी क्या है कि उसके करंट मेजरमेंट का क्षमता, एबिलिटी, रेंज बहुत कम है और जनरली मिली एम्पियर में होता है, और हमें मेजर करना था एम्पियर वगैरह में करंट्स। तो देयरफॉर हम किस तरह से करेंगे, तो हम उसके साथ एक पैरेलल में वेरी लो रेजिस्टेंस का शंट जोड़ेंगे, मुझे आता नहीं लगता, चलो एनीवे दिस हैज टू बी अ वेरी लो रेजिस्टेंस, कितना, अब जाके इसका कैलकुलेशन हो गया कि इतना। लेकिन ज्यादातर केस में पता क्या होता है, आई बहुत लार्ज होता है, 1000 टाइम्स होता है या उसी रेंज में होता है कंपेयर टू IG। तो जनरली ये जो कैलकुलेशन है ये हम ऐसे ही निपटा सकते हैं, कैसे, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली एज IG RG बाय I। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑब्वियसली एक्यूरेट तो नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ सत्यम से, दैट इज सर कांट एरर इन मेजरमेंट बाय वोल्टमीटर बी एडजस्टेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट फैक्टर। नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का एरर है, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई डेफिनेट एरर होता ना कि हर केस में 5% एरर, तो एक काम करो तुम वोल्टमीटर से काम चला लो, छोड़ो ये सब क्या पोटेंशियोमीटर वगैरह, तो वोल्टमीटर से निकाल के और 5% के एडजस्टमेंट कर लो, ऐसे नहीं, अलग अलग करंट पे देखना अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट फैक्टर्स, अब वो कैसे पहले से पता होगा, है ना। सो देयरफॉर वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, पोटेंशियोमीटर जो हमने समझाया था उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा, चाहे कुछ भी कर, ठीक है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन इज दैट एमीटर की भी एक्यूरेसी हाई होगी, सी गैल्वेनोमीटर का ही जब एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है तो एमीटर की एक्यूरेसी बहुत हाई नहीं, ठीक है ना। बट देन ठीक है, आई मीन यू हैव टू मेजर, और देखो कोई भी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत तो एक माइंड सेट बना के रखो कि कुछ ना कुछ तो एरर होगा, और उसका आई थिंक एनालिसिस तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, फिजिक्स में तो कभी आया नहीं अभी तक, और वो अनसर्टेनिटी फैक्टर याद है ना, वो डी ब्रॉली वाला, है ना, नहीं सॉरी पॉली, किसके, पॉली का है शायद ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाँ हाँ व्हाटएवर, तो मोमेंटम अनसर्टेनिटी, पोजीशन अनसर्टेनिटी, है ना, तो वो सब चीजें, तो देयरफॉर ध्यान रखना कोई भी मेजरमेंट प्रोसेस या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट उसमें एरर तो आती ही, यू कांट एक्सक्लूड एरर एज सच, ठीक है ना, या इवन उसको बहुत ज्यादा लेवल तक मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि उसका इफेक्ट कम से कम, दैट्स व्हाट यू कैन डू बेस्ट, ठीक है ना। So I think that's what we managed to do today. Today we just discussed about galvanometer, how it is converted into ammeter. और कल हम इसका रिवर्स कर लेंगे, that is how to convert galvanometer. रिवर्स तो नहीं करना चाहिए, एक और करेंगे, that is galvanometer to voltmeter. That will complete the set. और फिर हम दोबारा कुछ और डिस्कशन पे चलेंगे।
तो थोड़ा सा ही बचता है इसमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। आज हमने एमीटर का किया, ठीक है ना, कल हम लोग वोल्टमीटर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कल कर लेंगे फिर, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलो ओके बेटे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटे, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटे, थैंक यू, बाय बाय।